Good morning, students. Welcome. Yesterday we started new lesson as of fables. Okay, what is fables? It's a short stories which have morals and messages for others. Okay, हम जैसों के लिए उसमें मैसेज होता है, उसमें एक छुपी ये रहती है कि हमसे उसे कुछ सीख मिलती है. तो fables are short stories which gives us the moral as well as the messages for everyone. So who told the fables? As of it believed that many of the fables were first told by the wise person. Who has told these fables? It was told by Aesop, long back, okay, hundreds of years ago, and he lived in the Greece. One story yesterday I thought explained you the stag at the pool. He had a beautiful antlers, okay, curving antlers in which एंड ये had स्पिंडली लेग्स. उसके पैर कैसे थे? बहुत दुबले पतले से छोटे से थे, जबकि उसके एंटलर्स काफ़ी खूबसूरत थे. दिस इज कॉल्ड द एंटलर्स. ओके, तो ही वंस ही गॉट स्टक इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. जहाँ पे वो वहाँ पे फंस जाने की वजह से क्या है, उसके पीछे शिकारी पड़ते हैं. एंड एनी हाउ ही ट्राइड इज बेस्ट एंड एनी हाउ ही वॉज पॉसिबल टू फ्री हिमसेल्फ. अपने आप को फ्री करने में वो कामयाब हो जाता है और वो वहाँ से भाग खड़ा होता है. तब उसे महसूस होती है उसके पैर भले ही कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसकी पैरों की वजह से उसकी जान बच जाती है. और उसकी खूबसूरत एंटलर्स की वजह से जिसे इस बात की उसे काफ़ी गर्व था, घमंड था, उसी चीज़ की वजह से वो मुश्किल में पड़ गया था. ना टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस. It got stuck in the branches of the tree and he was in danger. Today I am going to teach you the next story, that is a dog in the manger. Okay. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. So what did it say? Once a dog was looking for a nice and comfortable place. मतलब एक डॉग देख रहा था अपने लिए comfortable और nice place, अच्छा जहाँ पे वो आराम कर सके. And what did he see? He saw a manger of an ox. मतलब जहाँ पे ox वगैरह, ox के लिए खाने के लिए ए रखा जाता है, box of see over here, यहाँ पे. तो he just came to he saw that he find a comfortable place to lie down. तो उसे वो जगह पसंद आई और वहाँ पे वो आराम करने चला गया. It was very hot afternoon. After a while the ox returned from the field. He had worked hard in the hot sun and was quite hungry. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. However, when he reached for the hay, the dog saw him standing in the manger. He began to bark loudly at the ox. Each time that the ox came near the hay, and dog snarled, barked and snapped at the ox. He would not allow the ox to eat the hay. Now the ox returned from the field. The ox was working in the field. वो खेत में हल जोत रहा था. And now he returned back in the hot afternoon and he worked hard in the hot sun. वो बहुत मेहनत कर रहा था ये ऑक्स, धूप में, कड़ी धूप में, और वो काफ़ी थका हुआ था. तो he came back to his near his manger where the food was ready for that ox. He stood in the stall for the planning to eat the hay that was put in the manger. मतलब यहाँ जो ये डाला गया था उसको खाने के लिए. He came near to that and he wanted to eat because he was quite hungry and tired also. However, when he reached for the hay, the dog saw him. As soon as he came near the hay, the dog saw him standing in the manger. He began to bark loudly at the ox. As soon as he see the ox, he started to bark. See over here, the dog is barking to the ox. Okay. The dog snarled, barked and snapped. Snarled मतलब अपने दांत ये करते, showed his teeth. दांत गुस्से से you would have watched the dog when they get angry, just they show their
teeth and all, अपने showing its anger, तो वैसे अपने दांत दिखाने लगे और गुस्सा भरा आवाज़ निकालने लगा. And snapped at the hawks. He would not allow the hawks to eat his hay. अभी एक डॉग क्या करने लगा, हॉक्स के ऊपर भौंकने लगा, उसको खाने के लिए दे नहीं रहा था, वहीं पे बैठा था. Oxen was generally peace loving and the patient animals, but finally the ox got upset and spoke firmly. Dog, if you wanted to share my dinner with me, I would not mind it, but you neither hit the air nor allow me to enjoy it. It is of no use to you. Then why don't you let me have my favorite food? Don't begrudge others what you don't enjoy yourself. What is in the ox is saying? Oxen मतलब oxen, it is a plural form of ox. Okay, oxen यहाँ दिया है means बहुत सारे ऑक्सन, ये प्लूरल फॉर्म होता है. तो ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग, मतलब वो बहुत पीस लविंग शांत किस्म के जानवर होते हैं. पेशेंस, पीसफुल रहते हैं हमेशा, मतलब ऐसे झगड़ा वगैरह या किसी के ऊपर ये नहीं करते. तो दे आर द पीस लविंग एनिमल्स. बट फाइनली द हॉक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली. बट अब वो हॉक्स क्या हुआ, बहुत अपसेट हो गया क्योंकि उसे भूख लगी थी. इतना काफ़ी तेज़ धूप में वो इतनी मेहनत करके आया था, अपने वापस स्टेबल में आया था. वहाँ आके स्टेबल या शेड, यू कैन से कैटल का शेड होता है, तो वहाँ पे वो आया था जहाँ वो आराम करना चाहता था और उसे काफ़ी भूख लगी थी. एंड ही वांटेड टू ईट हिज फेवरेट फूड, दैट इज़ द एग. What did he say to the dog? See, dog, if you wanted to share my dinner with me, I would not mind it. अगर तुम्हें मेरा खाना शेयर करना, if you want to share, if you want to eat my hay, you are most welcome to it. I won't, ये मैं तुम्हें इनकार नहीं करूँगा. Okay, I would not mind, I won't mind it. But you neither eat the hay nor allow me to enjoy it. It is of no use to you. But what it said, you neither eat the hay nor you let me to eat. मतलब ना तुम खाते, क्योंकि you know it very well, dog is ये सब नहीं खाते, एस नहीं खाते हैं, घास वगैरह वो नहीं खाते हैं, ये सिर्फ कैटल्स खाते, गाय भैंस वगैरह खाते. तो ये खाना इनके डॉग के लिए नहीं था और वो उसके लिए बेकार था. सो व्हाट द ऑक्स सेड कि इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर यू, दिस एस आर नो यूज़ फॉर यू, यू डोंट ईट एंड यू स्टिल डोंट अलाउ मी टू ईट. और तुम मुझे खाने भी नहीं रहे, कुछ भी खाते नहीं हो और मुझे भी खाने नहीं दे रहे हो. लेट मी हैव माई फूड, आई एम हंग्री. डोंट बिगर्ड अदर्स व्हाट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ. तो बोलते डोंट गिव सम, वही कुछ चीज़ जो आपको पसंद नहीं है और जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, तुम खा नहीं सकते, जो तुम्हारा कुछ फ़ायदे का नहीं है, वो तुम ऐसे इनकार मत करो, ये मेरा खाना है. लेट मी हैव माई फेवरेट फूड एंड यू आर नॉट विलिंग, बिकॉज मतलब यू आर नॉट विलिंग, द डॉग वॉज नॉट विलिंग टू गिव द ए टू द ऑक्स. तो बोलते ये तुम्हारा ये सही बात नहीं, इट्स वेरी अनफेयर ऑफ डूइंग दैट. So we completed this lesson. Okay, ये समझ में आया आपको. जो चीज़ आपके फ़ायदे का नहीं, जो चीज़ आपका इस्तेमाल का नहीं है, कोई और उसे खाना चाहता है या कोई और लेना चाहता है, कुछ लोगों को ये गवारा नहीं होता है. वो कभी कुछ लोगों की नेचर ये होती है, और दे डू खुद तो नहीं एंजॉय करते उस चीज़ को, लेकिन किसी और को भी एंजॉय करना नहीं देते. अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है लेकिन कोई और खाना चाहता है तो उसको भी आप खाने से रोकोगे. कुछ आप करना नहीं चाहते या खेलना नहीं चाहिए तो किसी और को भी आप करने नहीं दोगे, खेलने नहीं दोगे. कुछ लोगों की नेचर ऐसा होता है. तो व्हाट द हॉक्स इज सेइंग कि तुम तो खाते नहीं, लेकिन तुम ऐसे हो कि तुम मुझे भी नहीं दे रहे हो खाने के लिए. ये मेरा चीज़ का है, तुम खाते नहीं, तुम मत खाओ, भले कोई बात नहीं, बट तुम्हें ये अधिकार भी नहीं है कि तुम मुझे रोक सको इन सब चीज़ें. तो बोलते दो चीज़ तुम्हारे इस्तेमाल के नहीं, आप खुशी की नहीं है, उसे कम से कम किसी और को एंजॉय करने दो या खाने दो. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द डॉग एंड द हॉक्स. आई होप यू गॉट इट. व्हाट इज़ दैट इन दिस, एक फाइनल में बता रही है स्टोरी के बारे में. एक डॉग
वॉज लुकिंग फॉर ए कम्फर्टेबल एंड नाइस प्लेस। उसने एक ये शेड देखा, कैटल शेड, एक ऑक्स का शेड देखा जिसमें उसमें बॉक्स में दे सॉ दैट देयर आर मेनी एस इन द बॉक्स, और उसे लगा ये काफ़ी मुलायम अच्छी जगह है रेस्ट करने के लिए। उसी वक्त क्या होता है, ऑक्स अपने काम से ही केम रिटर्न बैक एंड ही वांटेड टू रेस्ट ओवर देयर एंड ही वांटेड टू हैव हिज फूड, बट द डॉग स्टॉप्ड हिम, स्टार्टेड टू बार्क एट हिम एंड डिड नॉट लेट द हॉक्स टू हैव इट्स फूड। तो ऑक्स इज एक्चुअली इज अ पीस लविंग एनिमल, वो किसी इसमें नहीं रहते, वेरी काम एंड ऑल। तो उसने कहा डॉगी से, इफ़ यू वांट टू हिट द ये यू कैन हिट द ये, यू कैन एन्जॉय विथ मी, मुझे भी खाने दो, एंड यू ऑल्सो एन्जॉय, बट यू डोंट ईट ऑल दिस थिंग्स एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर यू, सो यू जस्ट लेट मी हैव इट। जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है उसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि तुम दूसरे को भी खाने से मना कर दो या देने से इनकार कर दो। दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज। ओके, सी योर मीनिंग्स आर गिवन इन योर बुक, यू हैव टू राइट ऑल दिस मीनिंग्स। बिकॉज वी बी अनविलिंग टू गिव, किसी को देने के लिए हम हिचकिचाते या देना नहीं चाहते, खुशी नहीं, किसी और को देते हुए, खाते हुए या कुछ भी एंजॉय करते हुए कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, दे आर अनहैप्पी विद दैट थिंग्स। सो दिट इज व्हाट द नेम ऑफ द पर्सन। दिस 3 question had been, I think it has been given to you in the last lecture. The question was the answers were given to you. The remaining question today we will be clearing it out. See, this is read aloud the following speeches from the lesson. Some of the speeches are given, what the stag said when he saw his reflection, and find the smaller words hidden in the following words. Smaller words मतलब इसमें छुपे हुए नए शब्द, छोटे छोटे शब्द होते हैं, जैसे रिफ्लेक्ट, इलेक्शन, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं एक वर्ड्स के अंदर छिपे हुए। तो ऐसे स्मॉलर वर्ड्स ढूंढ के हमें शब्द बनाने हैं। दैट वॉज ऑल्सो गिवन टू यू, फ्यू वर्ड्स वेर गिवन टू यू टू सॉल्व। सिनोनियम्स मीन्स हैविंग अ सिमिलर मीनिंग। ओके, डिलाइटेड टू बी हैप्पी किसी चीज़ से, ब्यूटीफुल। ओके, तो इस सिनोनियम्स मतलब जिसके मीनिंग समानार्थी शब्द हम लोग बोलते हैं उसको हिंदी में, तो इसके हमें सिनोनियम्स ढूंढने हैं। So this is all. I have finished this lecture. Thank you.